کشمیریوں کو بھارتی فوج کے چنگل میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، جس حد تک جانا پڑا جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا پالیسی بیان میں واضح اعلان، خبردار کیا مودی سرکار کے فیصلے سے بھڑکنے والی آگ ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ عالمی برادری نے ابھی نوٹس نہ لیا تو پھر پاکستان ذمہ دار نہیں ہوگا۔ بھارت نے حملہ کیا تو اس کو بھرپور جواب ملے گا۔ روایتی جنگ سے بات آگے نکل سکتی ہے، خوف ہے انہوں نے اب کشمیر میں نسل کشی کرنی ہے۔ مودی سرکار نے اپنے نظریے کے لیے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ تحریک آزادی کشمیر پارلیمانی تحریک سے کچلی نہیں جا سکتی۔ ہندوستان کشمیریوں کو کچلے گا تو پلوامہ جیسے حملے ہوں گے، پھر شور مچائیں گے پاکستان سے دہشت گردی آئی۔ میں نیوکلیئر بلیک میل نہیں کر رہا، میں کامن سینس کو اپیل کر رہا ہوں کہ ایک ملک جو بلیٹنٹلی سارے انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اگر اب دنیا نہیں کچھ کرے گی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ یہ اور آگے جائے گی گیم، اور یہ ادھر چلی جائے گی جدھر سب کو نقصان ہوگا، جو کوئی نہیں تصور کرنا چاہتا۔ وزیر اعظم نے اقوام عالم کو صورتحال کی سنگینی بتا دی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہا، کیا دنیا ایٹمی جنگ کے لیے تیار ہے؟ یہ بات اس طرف جا رہی ہے تو ساری دنیا کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دو راستے ہوں گے، ایک بہادر شاہ ظفر کا راستہ، دوسرا ٹیپو سلطان کا راستہ۔ ہم ٹیپو سلطان کی طرح خون کے آخری قطرے تک مقابلہ کریں گے۔ اس جنگ کے نتیجے میں سب ہار جائیں گے۔ نیوکلیئر بلیک میل نہیں کر رہا، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں۔ مودی کی پارٹی جو حرکتیں کر رہی ہے وہ ہٹلر کی نازی پارٹی کرتی تھی۔ اسی سوچ نے گاندھی کو قتل کیا۔ دنیا کی خاموشی سے بھارت کو ہلہ شیری ملی، وہ اس حد تک جا پہنچا۔ بھارت کا فیصلہ عالمی معاہدوں کی ہی نہیں، ان کے اپنے آئین کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم کا ہر فورم پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے کا اعلان، بتا دیا عالمی عدالت جرائم میں جانے پر غور کر رہے ہیں، سلامتی کونسل جنرل اسمبلی میں معاملہ اٹھائیں گے، ریاستی سربراہان سے بات کریں گے۔ عمران خان کا قائد اعظم کے ویژن کو بھی خراج عقیدت، کہا قائد نے ہندو انتہا پسند نظریہ بھانپ کر ہی مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنایا۔ مودی سرکار نے پاکستان کی غیرت اور عزت کو للکارا ہے۔ مودی نے شہرک کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، وہ شہرک کو کاٹنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ شہرک کو کاٹے، ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں، اس کے ہاتھ توڑ دیں، پاکستان کو نہیں منائے نا۔ کشمیر پر اپوزیشن بھی یک زبان۔ شہباز شریف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج پاکستان دوراہے پر کھڑا ہے، ڈٹ جائیں گے، جھکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہو اب فیصلہ کرنا ہے، اب پانی پلوں کے نیچے سے بہہ گیا ہے، اب وقت ہے آخری حد تک جائیں، شہرک کٹ جانے سے پہلے مودی کا ہاتھ کاٹ دیں، اب مذمتی قراردادوں کا وقت نہیں، ٹھوس فیصلے کر رہے ہیں۔ مودی نے پاکستان کی غیرت کو للکارا، کیا حکومت کو پتا نہیں تھا مودی کیا کرنے والا ہے؟ 70 سال میں کسی بھارتی لیڈر کی ایسی سازش کی جرت نہ ہوئی۔ یہ بھی بولے، کیا مسلم دنیا میں پاکستان تنہا کھڑا ہے؟ ترکی کے علاوہ کسی نے کشمیر پر پاکستان کا ساتھ دینے کی بات نہیں کی۔ دنیا کو بتائیں کہ کشمیر کو فلسطین بننے دیں گے، نہ ہی بھارت کو اسرائیل۔ Stay silent while our Kashmiri brothers and sisters cry out for help, Mr. Speaker. The unilateral, undemocratic, illegal revocation of Article 35A and 370 demolishes the historical identity of occupied Kashmir. We will not accept it. The people of Kashmir will not accept it. The people of India should not accept it, and the world should not accept it, Mr. Speaker. Modi is playing with fire. بلاول بھٹو نے مودی کے انتہا پسندانہ اقدام کو حملہ قرار دے دیا، کہا مودی سرکار نے قلم کی جنبش سے ظلم کا دروازہ کھول دیا۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں، اپنے آئین اور عالمی اقدار پر حملہ کیا۔ بھارت کے اس اقدام کو نہ کشمیری مانتے ہیں نہ ہی پاکستان۔ بھارتی فیصلے سے پورے خطے میں آگ لگ جائے گی۔ مودی آگ سے کھیل رہا ہے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ بھی کہا وزیر خارجہ ملک میں نہیں، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نہیں آئے۔ اگر پاکستان کشمیر کے لیے نہیں بولے گا تو کون بات کرے گا؟ آج مجرمانہ خاموشی کیوں؟ وزیر اعظم اپنی تمام تر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کشمیر پر کچھ کریں۔
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कश्मीरियों से इजहार यकजहती की तहरीक पेश। ऐवान में इमरान खान, आसिफ जरदारी, बिलावल और शहबाज शरीफ की आमद पर नारे लगे। सदर और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की काली पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत। उधर कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी जारी रहेगा। वफाकी काबीना का इजलास फिर मुलतवी। पाक फौज कश्मीरियों के लिए फ्रंट लाइन पर किसी भी हद तक जाने का ऐलान। आर्मी चीफ का दुश्मन को वाजे और दो टोक पैगाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की जानिब से भारतीय कदम मुस्तरद करने के फैसले की भरपूर हिमायत। कहा, पाकिस्तान ने कभी भी मकबूजा वादी में भारतीय तसल्लुत को कानूनी बनाने वाले आर्टिकल्स को तस्लीम नहीं किया। अब भारत ने खुद ही इस खोखले बहाने को खत्म कर दिया। आर्मी चीफ बोले, पाक फौज कश्मीरियों के साथ खड़ी है, कश्मीरियों की जदोजहद आजादी का साथ देती रहेगी, हर तरह के हालात के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कश्मीरियों के हक पर डाका मारा गया। भारतीय माइंड सेट को दुनिया ने मुस्तरद किया। मुआवन खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की मिशाल मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे, इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे, हर फोरम पर मामला उठाएंगे। मिशाल मलिक बोली, कश्मीरियों का साथ देने पर इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। ट्रंप की पेशकश पर कश्मीरियों में खुशी की लहर दौड़ी थी। पाकिस्तान ने कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। ओआईसी की राब्ता कमेटी बराए जम्मू और कश्मीर का जद्दा में हंगामी इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, आज़रबाईजान, तुर्की समेत दीगर ममालिक की शिरकत। वजीर खारजा बोले, भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म करना बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। भारत ने अब कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी छीन ली। पाकिस्तान ने खतरे को भांपा। अक़वाम मुत्तहिदा ओआईसी को खदशात से आगाह किया। वजीर खारजा का फौरी वतन वापसी का फैसला। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए गुज़श्ता रोज सऊदी अरब पहुंचे थे। चीन का भी सख्त और सीधा मौक़िफ़। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, चीन को मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर सख्त तशवीश है। भारत सरहदी अमूर पर मोहतात रहे, मुतल्लक़ा मुआहदों की पासदारी करे। भारत ने हालिया दिनों में मुकाम क़वानीन में तब्दीली करके चीनी सरहदी आज़ादी को नुकसान पहुंचाया। भारत में जुल्म बरबरियत पर अक़वाम आलम की आंखें भी खुलने लगी। अमरीका को मकबूजा वादी में गिरफ्तारियों पर तशवीश। कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के एहतराम और मुतासिरा हलकों से बातचीत पर जोर देते हैं। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की दोनों ममालिक से तहम्मुल से काम लेने की अपील। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट डेबी इब्राहिम ने आर्टिकल 370 की मनसूखी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। डेबी इब्राहिम ने बरतानवी वजीर खारजा और अक़वाम मुत्तहिदा को खत भी लिख दिए। जर्मन वजारत खारजा ने भारत से मुज़ाकरात पर जोर दिया। अमरीकी नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स की इस्लामाबाद में सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात। पाकिस्तान अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। अमरीकी और बरतानवी मीडिया ने भी मोदी की मुतस्सबाना पॉलिसियों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में लिखा, भारत जानबूझकर पाकिस्तान के साथ जंगी फिजा कायम कर रहा है। भारतीय इक़दाम इंतहाई गलत और खतरनाक है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, भारत के कश्मीर पर कब्जे ने तबाहकुन मोड़ इख्तियार कर लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मोदी के इक़दाम ने मज़ीद कश्मीरियों को आज़ादी के लिए हथियार उठाने की तरफ धकेल दिया है। द गार्डियन ने तजिया करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करने के तबाहकुन नताइज होंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पूरा मुल्क कश्मीरियों के लिए मुत्तहिद हो गया। आजाद कश्मीर में टायर जलाए, स्याह परचम लहराए गए। मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक पर मुजाहरा। अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन के दफ्तर के सामने जमीन पर लेट कर एहतजाज किया। लोकसभा में पेश की गई करारदाद को चौक में जलाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। ट्विटर पर मोदी किलिंग कश्मीरीज और कश्मीर का सौदा नामंजूर के हैशटैग्स टॉप ट्रेंड बन गए। फनकार बरादरी भी उठ खड़ी हुई। कश्मीरियों की हर फोरम पर हिमायत का अज़्म।
कोयटा फिर धमाके से गूंज उठा। मिशन रोड पर बम धमाका, एक शख्स जाँ बहक 10 जख्मी हो गए। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वजीर आला बलूचिस्तान की मजम्मत। पीपल्स पार्टी ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। गवर्नर सिंध की अदम मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी का कायम मुकाम गवर्नर बनने से इनकार। कहा, आइन के तहत गवर्नर की गैर मौजूदगी में स्पीकर ही कायम मुकाम गवर्नर होता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब बोले, डिप्टी स्पीकर ने कानून की पासदारी की। विफाक का नोटिफिकेशन आइन के मुनाफी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हज की सआदत के लिए सऊदी अरब चले गए। कराची की सफाई पर सिंध हुकूमत भी विफाक के साथ। सूबाई वजीर नासिर शाह का अली जैदी को फोन, मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। मुस्तफा कमाल की तनकीद, कहा सफाई सिर्फ सोशल मीडिया और टॉक शोज तक महदूद है। उधर अली जैदी की कराची की आवाम से भरपूर साथ देने की अपील। दिल की आवाज, दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी पर हर पाकिस्तानी का जज्बा उरूज पर। सब्ज हिलाली परचम बुलंद, घरों को भी झंडियों से सजा दिया गया। बच्चों की भी भरपूर तैयारी, बैजेस और झंडियां खरीदने में मसरूफ। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं दुआ जमील। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे जमील सुखेरा भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फैसले से भड़कने वाली आग एटमी जंग में बदल सकती है। वजीर आजम इमरान खान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, आलमी बरादरी ने अभी नोटिस ना लिया तो फिर पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं होगा। आलमी बरादरी ने अभी नोटिस ना लिया तो फिर पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं होगा। हम आखिरी हद तक गए तो सबकी हार होगी। दुनिया आज एक्ट नहीं करेगी, फिर हम जिम्मेदार नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करने के नताइज से भारत के साथ सारी दुनिया को खबरदार कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने खदशे का इजहार किया कि इंतहा पसंद बीजेपी कश्मीरियों की नस्ल कुशी शुरू कर सकती है। डेमोग्राफी चेंज करना 4th जिनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 के खिलाफ है। वॉर क्राइम समझी जाती है ये क्योंकि उनको अपना बराबर के इंसान नहीं समझते। स्पीकर साहब, ये रेसिस्ट है आइडियोलॉजी। सारे इंटरनेशनल लॉज और अपने मुल्क के लॉज उन्होंने वायलेट किए। वजीर आजम ने कहा कि मोदी हुकूमत के फैसले से तहरीके आजादी कश्मीर मजीद शिद्दत पकड़ेगी। क्या वो कानून की वजह से फैसला करेंगे कि अब खत्म होगी हमारी जदोजहद, हम गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए? ये तो और स्पीकर साहब शिद्दत पकड़ेगी। अब इन्होंने और दबाना है कश्मीर की रेजिस्टेंस को, आज़ादी की मूवमेंट को। वो इनको क्रश करने की कोशिश करेंगे और जब वो क्रश करेंगे रद्द अमल आएगा। पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। इन्होंने वही करना है जो पहले इन्होंने किया। इन्होंने दुनिया ने कहना जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी आई। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि मामला सिर्फ भारत की इल्जाम तराशी पर खत्म नहीं होगा, इसके खतरनाक नताइज निकलेंगे। कन्वेंशनल वॉर अगर हो गई क्या होगा? 2 नतीजे हो सकते हैं। वॉर हमारे खिलाफ भी जा सकती है, हमारे लिए भी जा सकती है। अगर हमारे खिलाफ वॉर जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर स्पीकर साहब, इसी हॉल में मैंने कहा था हमारे पास 2 रास्ते हो जाएंगे, एक बहादुर शाह जफर और दूसरा टीपू सुल्तान का रास्ता। एक रास्ता वो ये हाथ खड़े करके हम हार मानने की करेंगे, दूसरा रास्ता टीपू सुल्तान का कि आखिरी खून के कतरे तक हम मुकाबला करेंगे। अगर हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे तो वो कौन सी जंग होगी? वो जंग होगी जो कोई नहीं जीत सकता। मैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं कॉमन सेंस को अपील कर रहा हूं। वजीर आजम इमरान खान ने आलमी बरादरी को मुखातब करते हुए इस मामले पर संजीदगी का एहसास दिलाने की कोशिश भी की। जो ये पार्टी इनकी हरकतें कर रही है वो नाज़ी पार्टी करती थी। ये वो सोच है, वो आइडियोलॉजी है जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया। क्या दुनिया वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड है? यूएन की भी एक आध ह्यूमन राइट्स पे रिपोर्ट आई, पहले तो वो भी नहीं करते थे। उनको और हल्लाशेरी मिली कि अच्छा
अगर दुनिया कुछ नहीं कहती आगे गया, और इसलिए उन्होंने ये एक्ट किया है। वजीर आजम इमरान खान ने मोदी हुकूमत के फैसले को दो तरफा मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गए, इस गवर्नमेंट अपनी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट गई, वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन के अगेंस्ट गए, वो शिमला एग्रीमेंट के अगेंस्ट गए। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों को काबिज फौज के हिसार में अकेला नहीं छोड़ेगा। सारों से हम अप्रोच कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, OIC को कल अप्रोच कर बैठे थे, हम एम्बेसडर्स को अप्रोच करें, हमारे फॉरेन ऑफिस से उनको मीटिंग की है, हमने जो मेन हेड्स हैं उनसे बात करें, आज मजीद और करूंगा, हम हर फोरम के ऊपर उठाएंगे। वजीर आजम ने कायदे आजम के विजन को भी खिराजे तहसीन पेश किया कि उन्होंने कबल अज वक्त हिंदू इंतहा पसंद नजरिया भांप कर मुसलमानों के लिए अलग वतन बना दिया। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के लिए भारत के सामने डट जाने का वक्त है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए भारत के सामने डट जाने का वक्त है। और उन्होंने ये भी कहा कि शहर कट जाने से पहले मोदी के हाथ काट दें, अब मजम्मती करारदादों का नहीं फैसलों का वक्त है। ने शहरक के ऊपर हाथ डाला है, वो शहरक को काटना चाहता है, इससे पहले कि वो शहरक को काटे हम उसके हाथ काट दें, उसके हाथ तोड़ दें, पाकिस्तान को दिन बनाए ना। हमारे पास दो रास्ते हैं, या हम डट जाएं या झुक जाएं। झुकने वाली ऑप्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन, हमें डटना होगा और कश्मीर के लिए हमें हर कुर्बानी देनी होगी। नाम स्पीकर, मकबूजा कश्मीर पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि अब मजम्मती करारदादों का वक्त गुजर गया, अब पाकिस्तान को ठोस फैसले करने हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की गैरत और इज्जत को ललकारा है और अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है। इज नॉट आवर मैसिव फेलियर कि हमारी कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी थी नहीं। 71 साल में किसी हिंदुस्तान के हुक्मरान को जरूरत नहीं हुई कि इस तरह की वो बदतरीन वहां पर साजिश करे। ऑपोजिशन लीडर ने कश्मीर के खिलाफ भारतीय साजिश पर मुस्लिम दुनिया के किरदार पर भी सख्त तनकीद की। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने महातीर मोहम्मद से बात की, उन्होंने जवाब में क्या कहा कि यस वी विल कीप एंगेज्ड। फिर प्रेसिडेंट तैयब अर्दोआन से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की साथ हैं और कश्मीर पॉलिसी के साथ हैं। जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मुरब्बी सऊदी अरेबिया में, UAE में, मैंने उनको भी गुजारिश की, आज अभी तक एक लफ्ज नहीं आया। नोबडी स्टैंडिंग बाय अस एक्सेप्ट टर्की। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म आज कौम को बताएं कि हम भारत का मुकाबला करेंगे और दुनिया को बताएं कि कश्मीर को फलस्तीन बनने देंगे, ना ही भारत को इसराइल। भारत का मकबूजा कश्मीर पर फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर हमला है। बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट में खिताब, कहा मोदी आग के साथ खेल रहा है। भारत का मकबूजा कश्मीर पर फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर हमला है। मोदी आग से खेल रहा है। फैसले से पूरा खित्ता एटमी हादसे से दो चार हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।